Good morning, students. Let's start our video. Topic for today's video is element and classification of element. As we know that elements, what meaning of element? Element definition of element. Elements are those substances which are made up of any one kind of atom. Any one kind of atom means, suppose that we have copper, and that is the inner structure of copper. Here, these are copper atoms. The copper is made up of only copper atoms. That's why copper is called element. Means element are those substances which are made up of only one kind of atom, and they are easily found in earth crust. Okay. Now classification of elements. So elements are basically classified into these four categories based upon their physical properties, not chemical property and any other property. Start with metal. That is metal, non-metal, metalloid and noble gases. Metals are those elements which are available on very large scale. They are malleable, ductile, they can conduct electricity. We will discuss these properties further. तो बेसिकली क्या है ये विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो ये ज़्यादा क्लियर कर दे रहा है नहीं मेटल क्या होता है. तो डेली बेसिस पे हम देखते हैं कई चीज़ें जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देती हैं. जैसे आपके घर में कॉपर वायर लगा होगा, एल्युमिनियम वायर लगा होगा, एंड दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. दैट्स व्हाई दे आर metals. Those materials, or you can say those elements which cannot which doesn't conduct electricity are called non-metals. Non-metals doesn't conduct electricity, like different gases in atmosphere, hydrogen, helium, lithium, they are all gases which cannot conduct electricity. Now metalloids. Metalloids are those substances which have properties in between metal and non-metal. Some metalloids behave like metal. It means metalloids have some metallic property and some non-metallic property. We can convert metalloid from its non-metallic property to metallic property, and that is used in our computer chip and various electronic devices. For example, silicon and germanium plates. Boron, silicon, germanium, arsenic, antimony, tellurium, these all are metalloids. So metals are available in large scale, non-metals are available in less amount. Whereas metalloids there are only these metalloids available in periodic table. Boron, silicon, germanium, arsenic, antimony, tellurium, and palladium. Palladium is basically radioactive element. That's why we can count it in metalloid, but they are basically radioactive elements. Noble gases. Noble gases are those gases. These are elements. Such type of element will never react with any other substance. They do not react with other elements chemically. Chemically means bonding between them, right? For example, helium, neon, argon, krypton, xenon, radon, and its neon atomic number is 118. That is organism. So these are noble gases. हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी, राइट. तो ये नोबल गैसेस हैं. मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे हैं, नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट कर रहे हैं. मेटलॉइड इनिशियली इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट कर रहे हैं, लेकिन मैं इसमें कुछ चेंज कर देता हूं तो दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. नोबल गैसेस
ये वो गैसेस है जो नॉर्मली रिएक्ट नहीं करते, जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में जो एयर की बात करते हैं, एयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लॉट ऑफ गैसेस, बहुत सारे गैसेस का कॉम्बिनेशन एयर होता है, बट क्या वो एक दूसरे से रिएक्ट होता है? नहीं, सबका अलग अलग परसेंटेज है, हाइड्रोजन इतना परसेंट है, ऑक्सीजन इतना परसेंट है, नाइट्रोजन इतना परसेंट है। तो अगर मैं नोबल गैसेस की बात करूँ तो नोबल गैसेस पीरियोडिक टेबल का वो लास्ट वाला ग्रुप होता है, 18 ग्रुप, जिसे हम नोबल गैसेस कहते हैं, इनर्ट गैसेस भी इनको कहते हैं, क्योंकि ये गैसेस नॉर्मली रिएक्ट नहीं करते हैं और इनके आपको इजीली एटम के फॉर्म में अवेलेबल होंगे। ये कहीं मॉलिक्यूल के फॉर्म में नहीं दिखेंगे, कहीं भी आपको हीलियम He2 नहीं दिखाई देगा, क्योंकि दो हीलियम मिलकर रिएक्ट करके He2 बनाएंगे ना, तो नहीं होता है, ये अकेला एटम के फॉर्म में आपको मिलेगा। तो नॉन रिएक्टिव गैसेस हैं, इनर्ट गैसेस हैं, दे आर कॉल्ड नोबल गैसेस। नाउ properties, general properties of these elements। तो पहले हम बात करते हैं मेटल एंड नॉन मेटल, डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, और इन डिफरेंसेस के साथ प्रॉपर्टीज भी हम डिस्कस करते हुए चलते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज मैलिएबल। मैलिएबल मीन्स दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट विदाउट ब्रेकिंग। मैलिएबल मीन्स दे कैन बी बीटन। अगर मैं, मैलिएबिलिटी का मतलब क्या है कि ये मेटल है, एलिमेंट है, मैं कोई भी एलिमेंट लिया, उस एलिमेंट को अगर मैं बीट करता हूँ, ऐसे हिट करता हूँ, हैमरिंग करता हूँ, तो एक पतली थीन शीट बन जाती है, पतली थीन फॉयल, जस्ट लाइक एल्युमिनियम फॉयल जिसे हम रैप करते हैं अपने फूड प्रोडक्ट्स। एल्युमिनियम फॉयल, एल्युमिनियम इज एन एग्जांपल ऑफ एलिमेंट which have metallic property. Metallic property means what? They can easily malleable. तो malleable means इनकी हम पतली शीट बना सकते हैं, एल्युमिनियम फॉयल है, ठीक है। तो इसकी एक एक्सेप्शन भी है, जिंक। अगर हम मैलिएबिलिटी, जिंक भी मेटल है बट इसकी मैलिएबिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं होती है। अगर ज़्यादा इससे हम थीन शीट बनाने की कोशिश करेंगे तो दे आर ब्रिटल इन नेचर और ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो मैलिएबिलिटी क्या है? मैलिएबिलिटी आपकी वो प्रॉपर्टी है, दे कैन बी बीटन इनटू थीन शीट विद अ हैमर विदाउट ब्रेकिंग। बिना ब्रेक किए अगर ये थीन शीट बना देता है, दैट इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी। अगर मैं नॉन मेटल की बात करूं तो ऑल नॉन मेटल्स आर ब्रिटल इन नेचर। कोई भी नॉन मेटल ऐसा नहीं है जिसकी हम थीन शीट बना सकते हैं। ओके, नाउ डक्टाइल। डक्टाइल इज अनदर प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। डक्टाइल मीन्स सिंपली सपोज दैट आपने एक मेटल लिया, उस मेटल को टेम्परेचर देकर एक थीन वायर में कन्वर्ट कर दिया। तो जो थीन वायर, पतले वायर में कन्वर्ट कर दिए हैं, ये मैलिएबल डक्टाइल है। डक्टाइल है जिसकी वजह से आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी है, आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए वायर यूज हो रहा है, उस वायर के अंदर जो पतला सा एक थीन धागे की तरह मेटल लगा हुआ है, वो डक्टाइल नेचर की वजह से ही है। मीन्स द मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू अ थीन वायर, राइट। सिल्वर और गोल्ड एक बेहतरीन एग्जांपल है, वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल इज सिल्वर एंड गोल्ड। सिल्वर एंड गोल्ड इज बेस्ट डक्टाइल मटेरियल अवेलेबल। ओके, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सारे के सारे मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, हीट को भी कंडक्ट कर सकते हैं। इसके लिए एक एग्जांपल आपने वो क्लास 7 में या 7 में ही शायद पढ़ा होगा। उसमें क्या था कि एक शीट पतली आयरन की प्लेट को लेते हैं और इस आयरन के प्लेट पे वैक्स की हेल्प से कुछ आयरन नेल्स को यहाँ पे चिपका देते हैं विद द हेल्प ऑफ वैक्स। और क्या होता है, जब यहाँ पर ढेर सारे आयरन नेल्स आपने चिपका दिया और इस पोर्शन को आप हीट देना स्टार्ट करते हैं, जब हीट देना स्टार्ट करते हैं तो जैसे हीट यहाँ पर करते हैं तो यहाँ से 1 बाय 1 सारे आयरन के नेल्स ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो पहले इधर वाला होगा, फिर इधर वाला होगा, फिर इधर वाला, फिर इधर, फिर इधर। इसका मतलब क्या है, हीट जो है इधर से इधर की तरफ मूव कर रहा है। जैसे ही हीट आगे बढ़ रहा था वो यहाँ के वैक्स को मेल्ट कर दे रहा था और आयरन नेल ड्रॉप हो जा रहा था। तो ये हीट की कंडक्टिविटी है। और इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी तो आप डेली लाइफ में देख रहे हो, आपके घर में जो वायर लगा हुआ है उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रहा है। हालांकि यहाँ पर अगर मैं एक्सेप्शन की बात करूँ तो बुक में तो नहीं दिया है, बट
There is one exception. Exception is very common, like tungsten. Tungsten वो एलिमेंट है जिससे बल्ब का फिलामेंट बना होता है. येलो वाली बल्ब जो होती है, येलो लाइट वाली, उसके फिलामेंट्स बने होते हैं टंगस्टन के. देखो अब क्या हो रहा है, जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो टंगस्टन का जो फिलामेंट है वो चाहता नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी पास हो, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी का अपोज कर रहा है. जब अपोज कर रहा है तो वो धीरे धीरे हीटअप होता है. हीटअप होता है तो फिर बल्ब आपको ग्लो करने लगता है. तो टंगस्टन एक ऐसा मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी को अपोज करता है. दैट्स वाई वो जल्दी हीटिंग इफेक्ट शो करता है. तो ये एक्सेप्शन है जो कि आपकी बुक में नहीं है हालांकि. एनीवे, सबसे अच्छा कंडक्टर अगर बात करें तो सिल्वर है, राइट. अब बात करते हैं लस्टरस की. लस्टरस मीन्स शाइनी. तो नॉर्मली सिल्वर, गोल्ड, ऑल मेटल्स आर शाइनी इन नेचर. और ये साइन कैसे, सिल्वर कलर के हो सकते हैं, ग्रे कलर के होते हैं मेटल्स. नॉन मेटल्स नॉर्मली शाइनी नहीं होते हैं, बट कुछ नॉन मेटल एक्सेप्शन में भी आ जाते हैं. जैसे कि आयोडीन है. आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो शाइनिंग करता है, बट नॉर्मली मेटल्स आर लस्टरस यानी शाइनिंग इन नेचर. तो इसके लिए कई सारे चीज़ें हैं जहाँ कुछ जगहों पर तो मिरर देख रहे हैं. मिरर इज गुड रिफ्लेक्टर. लाइट उसके ऊपर पड़ती है, रिफ्लेक्ट होता है. मिरर को आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं. मिरर के पीछे एक कोटिंग होती है, सिल्वर की कोटिंग होती है, वो साइन के लिए होती है. ठीक है, तो ये सिल्वर यूज होता है. ऑल मेटल्स आर जनरली हार्ड. ऑल मेटल्स आर जनरली हार्ड. इसमें एक्सेप्शन है, देयर इज सम एक्सेप्शन. सोडियम एंड पोटेशियम. सोडियम एंड पोटेशियम एक ऐसे मेटल्स होते हैं जो पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट ग्रुप में आते हैं. और इन मेटल्स को आप विद द हेल्प ऑफ नाइफ यू कैन कट, राइट. नाउ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ. टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब समझना थोड़ा सा मुश्किल है, तो मैं समझा रहा हूँ टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है. किसी भी मेटल का स्ट्रेन यानी खिंचाव, स्ट्रेन या स्ट्रेस बियर करने की जो कैपेसिटी है, कैपेसिटी ऑफ बियरिंग स्ट्रेन ऑफ एनी मटेरियल इज नोन एज इट्स टेंसाइल स्ट्रेंथ. टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब ये हुआ, जैसे कि आप देखे होंगे कि जैसे एक दो खंभे के बीच में एक लंबी सी वायर मेटालिक होती है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है. तो वो इतने डिस्टेंस तक वो वायर क्यों जा पा रहा है, क्योंकि जब वो वायर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस तक ऐसे लगाया गया है, जैसे दो खंभे हैं, इन दो खंभों के बीच में ये बहुत दूर दूर तक इलेक्ट्रिसिटी के खंभे होते हैं और इनके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी वाले वायर्स ऐसे लगे होते हैं. तो अगर ये वायर जो होते हैं ये स्ट्रेन अपने खिंचाव को बेयर करने की कैपेसिटी नहीं होता तो ये ब्रेक कर जाते हैं, और ब्रेक कर जाते तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाता. तो मेटल्स जो होते हैं उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग होती है, जिसकी वजह से उनका यूज़ आप इलेक्ट्रिक वायर में करते हैं. ठीक है, ब्रिज बनाते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनते हैं, इन सब में आयरन यूज़ होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टील. आयरन इन द फॉर्म ऑफ स्टील यूज़ होता है. स्टील के वो जो मेटालिक रॉड्स होते हैं जिन पे पूरी बिल्डिंग टिकी होती है, तो इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ की वजह से, राइट. नाउ सॉलिड्स. जितने भी मेटल्स हैं, ऑल मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. देयर इज एक्सेप्शन, दैट इज मरकरी. मरकरी जो आप क्लिनिकल थर्मामीटर में यूज़ होता है, जो टेम्परेचर को इंडिकेट करता है, दैट इज मरकरी. और वो मरकरी जो होता है Hg इज सिंबल. तो मरकरी इज लिक्विड मेटल, राइट. जबकि नॉन मेटल जो होता है, नॉन मेटल्स लिक्विड भी हो सकते हैं, सॉलिड भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकते हैं. ठीक है, लेकिन सारे के सारे मेटल सॉलिड्स ही होते हैं. नॉर्मली टेंसाइल स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो नॉन मेटल की टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होता है वेरी लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है. नॉन मेटल्स इजीली ब्रेक हो जाते हैं. कुछ मेटल्स भी होते हैं जिनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कमज़ोर होती है, जैसे जिंक. जिंक तो आप मान लो कि पूरे मेटल में एक्सेप्शन है. अगर हम बात करते हैं हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की, तो आयरन को ले लीजिए. आयरन का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो 1535 डिग्री सेल्सियस, 1535 डिग्री.
इतना टेम्परेचर देंगे तो आयरन मेल्ट होगा, तो बहुत ही ज़्यादा है ये। हालांकि कुछ ऐसे भी हैं जो बिलो 100 डिग्री पे भी मेल्ट कर जाते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, गैलियम। गैलियम तो इतना कम मेल्टिंग पॉइंट है कि आप यूँ समझ लीजिए गैलियम को लेकर आप अपनी इस मुट्ठी में ऐसे गैलियम को लेकर बंद करेंगे और वो मेल्ट होकर गिर जाएगा। मतलब आपकी बॉडी टेम्परेचर 37 है, उससे भी बिलो है मेल्टिंग पॉइंट गैलियम का। तो कुछ एक्सेप्शंस हैं मेटल में, बाकी नॉन मेटल सारे के सारे पहले से या तो गैसियस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म में है। अगर सॉलिड फॉर्म में भी है तो मेल्टिंग पॉइंट इनका बहुत ज़्यादा नहीं है। डेंसिटी की अगर बात करें, डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम रेशियो। किसी भी मेटल का मास अपॉन वॉल्यूम रेशियो डेंसिटी कहलाता है। सपोज दैट मेरे पास आई हैव 2 मार्कर्स, सपोज दैट ये मेरा आयरन का है, सेम वॉल्यूम, एवरीथिंग इज सेम, बट ये मेरा सपोज दैट एक नॉन मेटल का बना है, किसी भी नॉन मेटल का ये बना हो सकता है। अगर ये नॉन मेटल है और ये एक मेटल है, दोनों वॉल्यूम इक्वल है, दोनों इक्वल वॉल्यूम कंटेन किए हुए हैं, लेकिन अगर मास की बात किया जाए तो आयरन वाले का मास ज़्यादा होगा, राइट? आयरन वाले का मास ज़्यादा होगा। तो डेंसिटी क्या हुआ? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम मेरा दोनों का सेम है तो डेंसिटी किस पे डिपेंड किया? मास पे। मास जिसका ज़्यादा, डेंसिटी उसकी ज़्यादा। तो नॉर्मली जितने भी मेटल्स होते हैं उनकी डेंसिटी बहुत हाई होती है और नॉन मेटल्स की डेंसिटी बहुत लो होती है। यहाँ भी सोडियम और पोटेशियम दो ऐसे मेटल्स हैं जिनकी डेंसिटी लो होती है, जो एक एक्सेप्शन है। तो सारे के सारे नॉन मेटल की जो डेंसिटी होती है वो लो होती है, मेटल की डेंसिटी हाई होती है। सोनोरस, सोनोरस मतलब अगर आप उस पर हिट करते हैं तो रिंगिंग साउंड आता है। रिंगिंग साउंड आना सोनोरस होता है। इट मीन्स दे प्रोड्यूस साउंड व्हेन हिट विद अ हार्ड ऑब्जेक्ट, जस्ट लाइक योर स्कूल में जो बेल यूज होता है, फर्स्ट पीरियड 1 बेल, सेकंड पीरियड 2, ये 2 बेल, तो जब जैसे मेटल को हिट करते हैं एक रिंगिंग साउंड जनरेट होता है, उसे हम सोनोरस कहते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जिनके बेसिस पे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, कैटेगराइज करते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को। ठीक है, एक बार फिर से बता दूं, जितने भी मेटल्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, कुछ मेटल्स जो होते हैं वो लिक्विड हो सकते हैं। हालांकि एक ही मेटल है जो लिक्विड है, वो मरकरी है। सारे के सारे मैलिएबल होते हैं, मतलब सारे के सारे मेटल्स को अगर मैं हैमरिंग करूं तो थिन शीट बना सकता हूं। सारे के सारे मेटल्स जो होते हैं डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल मतलब उनके दोनों कान को पकड़ के खींचूं तो एक लंबी वायर बन जाए, राइट? ये हो गया गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नॉर्मली सारे के सारे मेटल्स अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास होने देते हैं, लाइक कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एल्युमिनियम। आपके घर में जो यूज होता है या तो एल्युमिनियम का वायर होगा या कॉपर का वायर होगा, राइट? कॉपर इज लिटिल बिट एक्सपेंसिव, तो एल्युमिनियम वायर नॉर्मली यूज होता है। ओके, लस्टर्स की बात किया गया कि सारे के सारे मेटल शाइनी होते हैं, लाइक इसलिए ज्वेलरी में यूज होता है, गोल्ड यूज होता है, सिल्वर यूज होता है। एक तो ये जल्दी रिएक्ट नहीं करते हैं वाटर, गोल्ड और सिल्वर जल्दी वाटर से रिएक्ट नहीं करता है, तो इस वजह से भी इनको ज्वेलरी में यूज होता है। हालांकि और इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। ये हार्ड होते हैं, इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी होती है, मतलब अगर चेन अगर बनाए हैं गोल्ड की, अगर उन्हें खींचना चाहूँ तो जल्दी खींच नहीं पाएगा कोई, है ना? डिपेंड करता है कितने कैरेट का है। 24 कैरेट इज प्योर गोल्ड, और प्योर गोल्ड जो होता है वो थोड़ा सा टेंसाइल स्ट्रेंथ उसकी कम होती है, तो उसमें कुछ इम्प्योरिटी मिला देते हैं, तो 22 कैरेट गोल्ड, 21 कैरेट गोल्ड। ओके, टेंसाइल स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक वायर की बात किया जो एक खंबे से दूसरे खंबे के बीच वायर होता है, तो स्ट्रेंथ बियर करने की कैपेसिटी, टेंसाइल स्ट्रेंथ। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई मेटल का, नॉन मेटल का लो। डेंसिटी, हाई डेंसिटी मेटल की, लो डेंसिटी नॉन मेटल की। सोनोरस, ऑल मेटल्स आर सोनोरस, मतलब रिंगिंग साउंड देते हैं व्हेन वी हिट, लेकिन कुछ नॉन मेटल्स, सारे नॉन मेटल्स जो होते हैं वो सोनोरस नहीं होते। तो जितनी भी प्रॉपर्टी मेटल की होती है अपोजिट कर देते हैं नॉन मेटल में, कि ये मेटल में होता है तो नॉन मेटल में नहीं होता है, राइट? मेटल मैलिएबल है, नॉन मेटल मैलिएबल नहीं है। मेटल डक्टाइल है, नॉन मेटल डक्टाइल नहीं है।
Metals are good conductor of heat and electricity. Non-metals are bad conductor of heat and electricity. Metals are shiny, non-metals are non-lustrous. Metals are generally hard, non-metals are not hard. Like brittle, we can use word brittle for non-metal. High tensile strength, low tensile strength for non-metal. High melting point and boiling point for metal, low melting and boiling point for non-metal. High density for metal, low density for non-metal. Sonorous metal, non-sonorous, it means not sonorous, non-metal. तो ये था क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज. तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मेटलॉइड्स क्या होता है और नोबल गैसेस क्या होता है. थैंक्स फॉर टुडे.